السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ میں سینک اسکول کے قیام کو منظوری دی جائے۔ تلنگانہ حکومت اور فوج کے درمیان مسائل کے حل کے لیے خصوصی عہدیدار کا تقرر کیا جائے۔ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا فوجی عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ شہر کی پرامن فضا کو خراب کرنے فرقہ پرستوں کی کوشش۔ پرانا پل میں اشرار کا تشدد، کئی افراد بشمول پولیس مین زخمی۔ پولیس کی لاٹھی چارج، حالات قابو میں۔ ایران میں پھنسے ہوئے ہندوستانی طلباء کو واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سے ہندوستانی ہم منصب کی بات چیت خوشائند۔ بیرسٹر اویسی کی میڈیا سے بات چیت۔ اور تلنگانہ کے وزیر کوماٹی ریڈی سے منسوب مبینہ رپورٹ پر گرفتار NTV کے صحافیوں کو ملی ضمانت۔ حکومت کی نیک نامی کو خراب کرنے پر برداشت نہیں کیا جائے گا، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا انتباہ۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ فوج اور تلنگانہ حکومت کے درمیان اراضی اور دوسرے انتظامی امور پر تبادلہ خیال کے لیے
कमांड कंट्रोल सेंटर में सिविल मिलिट्री लिएशन कॉन्फ्रेंस और वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुनक़िद हुई। इजलास में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, मेजर जनरल अजय मिश्रा, डीजीपी शिवधर रेड्डी के अलावा फौज और रियासती हुकूमत के ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में वजीर आला ने हुकूमत की तरफ से अहम मसाइल पर फौज के ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। उन्होंने सदर्न कमांड सेंटर के हेडक्वार्टर को हैदराबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। तेलंगाना में सैनिक स्कूल के क़याम की दरख्वास्त करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि तेलंगाना में 10 साल से एक भी सैनिक स्कूल को मंजूर नहीं किया गया। दूसरी रियासतों में 2 से 4 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत कौमी सलामती से मुताल्लिक़ ताउन में पेश रहेगी। वज़ीर आला ने बताया कि विकाराबाद में फ्रीक्वेंसी रेडार स्टेशन के लिए 3000 एकड़ आराजी मख्तस की गई है। वज़ीर आला ने दरख्वास्त की कि फ़ौज और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान मसाइल के हल और बातचीत के लिए फ़ौज की तरफ से ख़ुसूसी ओहदेदारों का तकर्रुर किया जाए। वज़ीर आला ने फ़ौजी हुक्काम को वाज़ेह किया कि मसाइल को मुसलसल बातचीत से ही हल किया जा सकता है। शहर की पुरअमन फिजा को खराब करने चंद फिरका परस्तों ने चारशंबे की शब पुराना पुल पर तशद्दुद बर्पा किया। राहगीरों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अशरार को मुंतशिर करने पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस वाक़े पर पेश है 4 TV ब्यूरो की ये रिपोर्ट। शहर की पुरअमन फिजा को मकदर करने फिरका परस्त अनासिर ने पुराने पुल दरवाजे पर तशद्दुद बर्पा किया। नशे में धुत शरपसंदों ने रास्ते से गुजरने वाले बेशुमार अफराद को इनकी मजहबी शनाख्त करते हुए इन पर हमले किए, इन्हें हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े में चंद अफराद जख्मी हो गए। गुजरने वाली कई गाड़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चारशंबा व जुमेरात की दरमियानी शब तकरीबन 11:30 ता 12 बजे हुजूमी तशद्दुद शुरू हुआ। 3 लारियों, 1 इनोवा कार और बेशुमार 2 व्हीलर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक एक्टिवा गाड़ी को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया। इब्तिदा में पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। मुकामी पुलिस को देखकर ऐसा लग रहा था कि पुलिस बेबस व लाचार है। आला ओहदेदारों की जाए वाक़े पर आमद के बाद पुलिस शरपसंदों को मुंतशिर करने लाठी चार्ज शुरू किया। हुजूमी तशद्दुद में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए। अशरार ने रात देर गए तकारीब से वापस होने वालों को चुन चुन कर निशाना बनाया। पुराना पुल दरवाजे में एक मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की अफवाह फैला दी गई, जिसके साथ पुराना पुल पारदीवाड़ा, जियागुड़ा, धूलपेट व उससे मुत्तसिल इलाकों से अशरार का हुजूम इस मुकाम पर इकट्ठा होता रहा और दरवाजे से मुत्तसिल निशान मुबारक को उखाड़ फेंका। वहां मौजूद चंद खबरों की बेहुरमती करते हुए इन्हें मिस्मार किया गया। इस रास्ते से गुजरने वालों की मजहबी शनाख्त करते हुए इन पर हमले किए गए। इब्तदाई 1 घंटे तक शरपसंदों का हजूम अपनी मनमानी करता रहा। एडिशनल कमिश्नर तफसीर इकबाल व डिप्टी कमिश्नर किरण खरे प्रभाकर की आमद के बाद ही पुलिस हरकत में आई और शब 3 बजे हालात पर काबू पाया। बाज़ ज़राए के मुताबिक संक्रांति के मौके पर दरवाजे के अंदरूनी हिस्से में जहां मूर्ति नस्ब की गई, चंद अफराद शराब नोशी कर रहे थे। इन्हीं के तबके के चंद मुकामी अफराद ने शराब नोशी करने वालों पर एतराज़ किया, जिन पर दोनों ग्रुप में बहस हो गई। इसी दौरान दरवाजे से मुत्तसिल एक फ्लैक्स को किसी ने फाड़ दिया और यहीं से ये अफवाहें फैला दी गई कि मंदिर की बेहुरमती की गई।
شر پسندوں کی ہجومی تشدد کے دوران چند مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پولیس اس واقعے پر 3 FIR درج کیے ہیں اور تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ پرانا پل دروازہ مختلف پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں آتا ہے۔ چارمینار ڈویژن کے تحت حسینی علم اور بہادر پورہ۔ یہ سارے واقعے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ پولیس اگر بر وقت ایکشن میں آتی تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی شہر کے ساؤتھ ویسٹ ڈویژنز میں پولیس نے تلایہ گردی شروع کر دی ہے۔ رات کے اس واقعے کے بعد دن میں حالات پرسکون بتائے گئے ہیں۔ کاشف علی خان کے ساتھ میں SM رفیع، 4 TV نیوز۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پرانا پل واقعے کو زعفرانی تنظیموں کی منصوبہ بند سازش قرار دیا، جو اپنے سیاسی آقاؤں کی ایما پر شہر کی پرامن فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ صدر مجلس نے جمعرات کی صبح پرانا پل کا دورہ کیا۔ انہوں نے مقامی پولیس پر عدم کارکردگی کا الزام لگایا اور کہا کہ اگر پولیس بر وقت کارروائی کرتی تو اس واقعے کو ٹالا جا سکتا تھا۔ انہوں نے مقامی افراد سے بھی ملاقات کی اور پولیس پر برہمی کا اظہار کیا۔ اس علاقے کے دورے کے بعد دارالسلام میں اس واقعے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے پولیس پر زور دیا کہ امن کی بحالی کو ترجیح دی جائے، عوام کی سلامتی کو یقینی بنائیں، جو اشرار تشدد میں ملوث تھے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ سنگ پریوار سے ملحقات تنظیمیں حیدرآباد میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ایسے واقعات زیادہ تر رات میں ہو رہے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ تشویش کی بات یہ ہے کہ مقامی پولیس وہاں کیا کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مقامی پولیس اس سلسلے میں اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت سے ملحقات تنظیم حیدرآباد میں امن کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے علاقے کی عوام سے بھی اپیل کی کہ اس طرح کی سازشوں اور کوششوں کو ناکام بنائیں۔ حیدرآباد پرامن ہونا چاہیے تاکہ شہر ترقی کر سکے۔ نہیں ایک دیکھیے حیدرآباد میں ایک پیٹرن بن چکا ہے کہ رات کے اندھیرے میں فرقہ پرست طاقتیں جن کا تعلق سنگ پریوار سے ہوتا ہے وہ چھوٹی سی بات کو بڑا کرتے ہیں۔ کسی کا پوسٹر پھٹ گیا، کسی کا یہ ہو گیا اور اس پر جا کر آپ یہ تماشا کرتے ہیں اور وہ اتنا سینسیٹیو علاقہ رہا ہے 1990 میں، اور پرسنلی میں نے وہاں پر بہت کوششیں کی، پارٹی نے کوشش کی، وہ ماحول ختم ہوا۔ اب پھر اچانک یہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پولیس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے اور لوکل پولیس اس کو کیسے بڑھنے دی، اور پولیس کی موجودگی میں سب تماشا کیوں ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے حیدرآباد کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں دونوں سمودائے کے، وہ ایسی شرپسند طاقتوں کی سازش کا شکار نہ ہو، اور اس کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، پولیس سے امید کرتا ہوں کہ سخت ایکشن لیں گے۔ جو بھی تھا وہ پوسٹر پھاڑا گیا، کوئی بولا یہ ہوا، دیکھیے ہر جگہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی یہ بدماشی کیا ہے، شرارت کیا ہے، شرپسندی ہے، یہ گندگی ہے اور اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حیدرآباد کی سٹی پولیس اس پر سخت ایکشن لے گی اور اس طرح کے واقعات پر روک لگائے گی۔ ڈی سی پی راجندر نگر کی نگرانی میں پولیس کے دستوں نے پرانا پل کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا۔ ڈی سی پی راجندر نگر کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ چہارشنبے کی رات تقریباً 11:30 بجے پرانا پل میسمہ مندر کے دروازے کے پاس نامعلوم شخص نے داخل ہو کر بینر اور مندر کی مورتی کو نقصان پہنچایا تھا۔ کامٹی پورہ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد 300 افراد جمع ہو کر قریبی چھلک کو نقصان پہنچایا اور پولیس عملے پر حملہ کیا۔ 4 پولیس ملازمین زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق مندر کے احاطے میں موجود بینر اور مورتی کو جزوی نقصان ہوا تھا۔ مندر کا گریا محفوظ ہے۔ پولیس نے اس واقعے سے متعلق افواہوں کے بے بنیاد قرار دیا اور عوام سے افواہوں پر توجہ نہ دینے کی اپیل کی۔ پولیس نے صورتحال کو مکمل قابو میں بتایا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ جو اشرار تشدد اور پولیس پر حملے میں ملوث ہیں ان کی CCTV کے ذریعے نشاندہی کی جا رہی ہے۔
आज शाम में कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी लिमिट्स में एक हम लोग हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये फ्लैग मार्च में हैदराबाद सिटी पुलिस के आर्म्ड रिजर्व, QRT, टास्क फोर्स और RAF के 2 कंपनीज पूरे मिला के 200 लोग तक पुलिस ऑफिसर्स पूरे विद राइट गियर के साथ फ्लैग मार्च किए हैं। ये फ्लैग मार्च में कामाटीपुरा एरिया के गली गली भी फिर के हुसैनी आलम लिमिट्स और कामाटीपुरा PS लिमिट्स में सब को कॉन्फिडेंस दिलाया गया। जो भी आम आदमी है, इनोसेंट पब्लिक है, इन लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हम लोग हर गली में जाके ये फ्लैग मार्च करे हैं। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने NTV के सहाफियों की गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई की मुदाफियत की है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बास चैनल्स अहम शख्सियतों की किरदारकशी कर रहे हैं। हुकूमत की नेकनाकमी को मुतासर किया जा रहा है। अगर इन मीडिया के पास कोई सबूत है तो वो सामने लाएं। अगर साजिशी तौर पर गुमराहकुन खबरें नशर की जाती हैं तो हम खामोश नहीं रहेंगे। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर खारजा S जयशंकर की ईरानी हम मनसब के साथ हुई बातचीत को खुश आइंद करार दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत हिंद और वजीर खारजा से दरख्वास्त की है कि ईरान में कई हिंदुस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। बिलखसूस शहीद बहश्ती यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा के सरपरस्तों ने फ़ोन करते हुए राब्ता किया है। हैदराबाद के भी तलबा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं। इंटरनेट इस वक्त बंद है। सरपरस्त बच्चों को फ़िज़ाई टिकट नहीं भेज सकते हैं। हुकूमत को इस सिलसिले में तलबा की फौरी मदद करनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत हिंद से अपील की कि ईरान में फंसे हुए तलबा को हिंदुस्तान लाने के लिए इक़दामात किए जाएं। तेलंगाना की महकमे सयाहत ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्कदा बैनुल-अक़वामी पतंग और मिठाई फेस्टिवल को कामयाब बनाने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर किया है। महकमे सयाहत की तरफ से प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया है कि 16 ता 18 तारीख सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर शाम 5 ता रात 8 बजे हॉट एयर बैलून फेस्टिवल मुनक्किद होगा। इसी प्रोग्राम के तहत 16 तारीख को शाम 7 बजे लाइव कंसर्ट होगा। हैंडलूम्स दस्तकारी के स्टॉल्स और ग़िज़ाई अशिया के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। 16 और 17 तारीख को गच्चीबौली स्टेडियम में सुबह 9 से रात 8 बजे ड्रोन फेस्टिवल भी होगा। साबिक वजीर हरीश राव ने रियासत के अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। सिद्दीपेट में मुनक्कदा संक्रांति की तकरीब में शिरकत करते हुए हरीश राव ने पतंगबाजी की। इस मौके पर हरीश राव ने चीनी मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने अवाम को इस मांझे से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। उन्होंने संक्रांति को किसानों का त्यौहार भी करार दिया। हरीश राव का कहना था कि चूंकि संक्रांति का त्यौहार सर्दियों में आता है, इसलिए धूप में पतंगबाजी से जिस्म को विटामिन D मिलती है। साबिक वजीर रियासत के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है। साबिक वजीर और BRS लीडर श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अगर हमारे वजूद और इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचा तो हम खामोश नहीं रहेंगे। साबिक वजीर ने कंटोनमेंट हल्के में BRS कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सिकंदराबाद की तारीख को मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इरादा किया कि जारिया माह की 17 तारीख से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद बचाओ रैली का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने इस रैली के पोस्टर की भी रौनमाई अंजाम दी। श्रीनिवास यादव ने बताया कि पार्टी के कारगुजार सदर KTR इस रैली में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि जो अहदेदार नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सईदाबाद डिवीजन के तहत पूसला बस्ती में मजलिस के सरगर्म कारकुनों ने काइट फेस्टिवल का एहतमाम किया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुन के सुमन गौड़, नागराज गौड़, कपिल अग्रवाल एंड ब्रदर्स, अरकान खानदान, दोस्त अहबाब और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। त्योहारों में कुल हिंद सनती नुमाइश में तो अवाम का एक सैलाब उमड़ आता है।
हैदराबाद के अतराफ अकनाफ के तमाम अजला से यहाँ लोग अपने अजीज वकारिब से मिलने आते हैं। जनवरी का महीना होने की वजह से वो नुमाइश भी देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ गुज़िश्ता चंद दिनों से नुमाइश मुशाहिदीन से खचाखच भरी हुई है, जिसकी वजह से कारोबार भी ज़बरदस्त हो रहा है। आरटीसी की जानिब से नुमाइश की गेट्स के करीब चारमीनार और मॉडल का एक काउंटर कायम किया गया है, जहां आरटीसी का स्टाफ नुमाइश देखने वालों को मुख्तलिफ मकामात जाने वाली बसों की निशानदही करके उन्हें बसों में बिठाते हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ भी न सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करता है बल्कि वो सड़क अबूर करने वालों की मदद करके उन्हें हादसात से भी बचाता है। अब रही बात खुश्क मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स की, ये ज़्यादातर कश्मीर में पैदा होते हैं। कश्मीरी स्टॉल्स में ज़्यादातर मलबूसात और ड्राई फ्रूट्स की कई स्टॉलें हैं, जिसके बारे में बाज़ स्टॉल्स के मालिकों ने इज़हार ख्याल किया है। कश्मीर के खुश्क मेवे के ताजिर ने बताया कि वो गुज़िश्ता 38 सालों से अपनी स्टॉल नुमाइश में लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका कारोबार ज़बरदस्त हो रहा है। एक और ड्राई फ्रूट्स के ताजिर ने मीडिया को बताया कि उनके पास खुश्क मेवे के अलावा पंजेरी, ज़ाफ़रान भी 2-3 किस्म के हैं। उन्होंने कश्मीरी ज़ाफ़रान और शहर के बारे में ज़रूरी बातें बताईं। उन्होंने नुमाइश में दस्तियाब सहूलतों की सताइश की। एक और कश्मीरी ताजिर ने मीडिया को बताया कि वो गुज़िश्ता 25 सालों से नुमाइश में अपनी स्टॉल्स लगा रहे हैं। खुर्शीद अहमद, J&K Expressman Dry Fruit Mart, near about 38 years. Very good response, very good response. We have got so many varieties, so many varieties. It is because we are also the branch in Srinagar also. So we are keeping ourselves in contact with the people of Hyderabad and other states. We are sending online the stock because the people generally don't like our stock. Date is not the product of Kashmir. We are getting it from Saudi Arabia. Okay? We are only keeping 2 varieties, okay, generally which are good. हमारे पास सब ड्राई फ्रूट का वैरायटी है, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, वो एक पंजेरी। इसके बाद ये हमारे पास डेट्स भी है। डेट्स में हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ है, और हमारे पास हनी में भी बहुत सारा वैरायटी है, और आपको रिजनेबल प्राइस में पड़ेगा। रुकन असम्बली याखूतपुरा जाफर हुसैन मेराज और रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने संक्रांति के मौके पर बच्चों में पतंगें, मांझा और चरखियां तकसीम की। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली और रुकन कौंसिल का गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया गया। मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर 77 दरख्वास्त गुजारों ने मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए चेक्स हासिल किए, जिसकी मालियत 28 लाख रुपए बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े याखूतपुरा में अवामी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी स्कीम के मुस्तहक़ दरख्वास्त गुजारों में दस्तावेज़ात तकसीम किए। रेन बाजार डिवीजन में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। किशनबाग डिवीजन में सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की रहनुमाई में मुफ्त 200 यूनिट बरक़ी सरबराही के दरख्वास्त गुजारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। मुकामी रुकन बलदिया हुसैनी पाशा ने बताया कि मुस्तहक़ अफराद को मज़कूरा सर्टिफिकेट्स हवाले किए गए। रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए जो भी स्कीमात शुरू की गई हैं, इस पर अमलावरी हो रही है। इस मौके पर महकमा बरक़ी के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। शब मेराज के मौके पर कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़र एहतमाम जुमा 16 जनवरी को बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा। मौलाना सैयद मोहम्मद शाह कादरी मुल्तानी सदारत करेंगे। बैरूनी मुक़र्रर बानी ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी बरेली शरीफ मौलाना मुफ्ती कलील अदनान रज़ा कादरी, मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह कादरी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाजिम रज़ा मंजरी मुरादाबाद, डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मोइज़ हुसैनी रज़वी कादरी शर्फी के खिताबात होंगे। हकीम M.A. साजिद कादरी मुल्तानी, डॉक्टर हैदर यमानी मेहमान खुसूसी होंगे। सदर कमेटी मोहम्मद शाहिद इकबाल कादरी ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है।
तामीर मिल्लत के साबिक सदर जनाब सैयद जलील अहमद एडवोकेट का चाहशुम्बा 14 जनवरी को इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा जुमेरात 15 जनवरी को मस्जिद बकी बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। तदफीन एहाते दरगाह हज़रत शाह राजू क़त्ताल रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज में अमल में आई। मरहूम दीनी समाजी खिदमात में सरगर्म रहा करते थे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फर्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि जिंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफर को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीजिया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में सैनिक स्कूल के क़याम को मंजूरी दी जाए। तेलंगाना हुकूमत और फौज के दरमियान मसाइल के हल के लिए खुसूसी ओहदेदार का तकर्रुर किया जाए। मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। वजीर आला का फौजी ओहदेदारों के साथ इजलास। शहर की पुरअमन फिजा को खराब करने फिरका परस्तों की कोशिश। पुराना पुल में अशरार का तशद्दुद, कई अफराद बशमूल पुलिसमैन जख्मी। पुलिस की लाठी चार्ज, हालात काबू में। ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए इक़दामात किए जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से हिंदुस्तानी हम मनसब की बातचीत खुशाइन। बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। और तेलंगाना के वजीर कोमाटी रेड्डी से मंसूब मुबैना रिपोर्ट पर गिरफ्तार NTV के सहाफ़ियों को मिली जमानत। हुकूमत की नेक नामी
کو خراب کرنے پر برداشت نہیں کیا جائے گا، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا انتباہ۔ اور ناظرین کے ساتھ 4TV خبر نامے کا آج یہی اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4TV نیوز۔ خدا حافظ۔